Welcome to our channel. So in the previous class we have discussed about the center of gravity, about the different objects or centroid of different objects, and we have made some differences in between the centroid and center of gravity. So today in this class we are going to discuss about the centroid of different symmetrical as well as unsymmetrical objects in a tabular form, as well as I will tell how to determine the centroid of unsymmetrical objects. So here you can see there are number of symmetrical as well as asymmetrical objects as discussed in the previous video. I have made some tabular forms in order to find the centroid of symmetrical as well as asymmetrical objects. So triangle is a asymmetrical object whose centroid lies at a distance of b by 3 from the base, and here you can see if this is a triangle, so centroid lies at a distance of, this distance is if it is h, if it is b, then it lies at a distance of b by 3 from here and h by 3 from here, and this distance is 2h by 3. I have already discussed this is in my previous video. You can see the previous video. Like that for semicircle the centroid is 4r by 3 pi. For quarter circle the centroid is also 4r by 3 pi. For better understanding, this x bar as well as the y bar is shown in this figure. Okay. For rectangle it is b by 2 and h by 2, and area of all the figures is also shown in the right hand side. So in order to solve the problem of unsymmetrical objects we need to remember all these things. Derivation is not required here. If you are really interested for the derivation, then you can give me a request for in my comment section. I will prepare video on that on demand. So like that this is the x bar and y bar and centroid location for semicircle as well as quarter circle and arc of circles. Arc of circle, for arc of circle x bar is r sin alpha y alpha and y bar is equal to 0. Like that area is also shown here. Here you can see. Okay, now come to solution of centroid of unsymmetrical objects. मतलब unsymmetrical objects के जो centroid होता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास दो ही फार्मूला होता है जिसको हम यूज करके अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंट्रोइड का लोकेशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है दोनों फार्मूला, दैट इज एक्स बार एज वेल एज वाई बार. सो व्हाट इज दिस एक्स बार? इफ वी कंसीडर दिस एज द वाई एक्सिस and this as the x axis. So if this is the centroid location, then distance from the x axis is nothing but distance of centroid from the x axis is nothing but the y bar, and distance of centroid from the y axis is nothing but the x bar. Okay, so for unsymmetrical objects I told you in my previous video, if we are going to solve the if we are going to find the centroid of unsymmetrical objects, then in that case we need to divide the whole area of unsymmetrical objects into some symmetrical as well as asymmetrical ऑब्जेक्ट्स. मतलब कहने का मतलब अगर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होगा तो वहाँ पर एरिया को कम्प्लीटली आप डिवाइड कर दें, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में. ओके, उसके बाद ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का आप एरिया निकालते हैं.
सेंट्रोइड निकालते हैं और इस फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। दिस फार्मूला एक्स बार इज एक्स आई ए आई, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई ए आई मतलब x1 a1 प्लस x2 a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, लाइक दैट y समेशन ऑफ y आई ए आई इज इक्वल टू y1 a1 प्लस y2 a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कैसे करना है। सो हियर ए सी सेक्शन इज शोन एंड हियर द अपर मोस्ट लेंथ इज इक्वल टू 120 mm and total length is equal to 130 mm. Okay, and here the length is equal to 80 mm and this length is equal to how much? 40 mm. Okay, so we need to find the centroid of this object. Actually this is asymmetrical object, so we have idea that the centroid will lie on this symmetrical axis. Okay, but where we need to find? So let us discuss how to find. First of all, we have to use the formula, that is x IAI. First of all, go to the step number 1. Step number 1 में मैंने आपसे बोला था अगर कोई अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आता है आपके सामने, हालांकि ये अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कुछ समय के लिए हम मान लेते कि अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है. So it is asymmetrical objects, but we need to solve this. We need to find the centroid. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले इंडिविजुअल सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. जैसे कि यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक 3 रेक्टेंगल्स में. इसको मान लेते हैं एरिया 1, इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 1, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 2, इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 3. ओके, इंडिविजुअल एरिया का हम सेंट्रोइड निकालेंगे. तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक्स बार के लिए, मतलब अभी तीनों रेक्टेंगल हो गया. इंडिविजुअल का x1 x2 और x3 और y1 y2 y3 a1 a2 a3, मतलब 9 एलिमेंट्स हमको कैलकुलेट करना है. x1 x2 x3 y1 y2 y3 a1 a2 a3. चलिए तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आते हैं फार्मूला को. क्योंकि फार्मूला अगर अप्लाई करना है आपको सेंट्रोइड के लिए तो पहले ये जो 9 एलिमेंट्स है वो आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा. तो कैसे हम a1 a2 a3 इजीली हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं. जैसे कि इसका जो एरिया होगा कितना होगा, एरिया ये रेक्टेंगल का एरिया जो होगा 40 mm इंटू 120 mm. दिस लेंथ इज इक्वल टू 120 mm एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू 40 mm. तो A1 का एरिया हो जाएगा 120 mm इंटू 40 mm. वैसे ही A2 का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 mm. कैसे है, यहाँ पर से यहाँ पर का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 80 mm, टोटल डिस्टेंस इज 120 mm. सो दिस टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 mm. सो ये डिस्टेंस हो गया 40 mm और यहाँ पर से डिस्टेंस से लिखा है इधर 50 mm. सो एरिया इज इक्वल टू 50 mm बाई 40 mm, 50 mm इंटू 40 mm. लाइक दैट एरिया 1 और एरिया 3 तो सेम ही है, तो इसलिए इसका भी एरिया आ जाएगा 40 इंटू 120 mm. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, जो स्टेप 1 मैंने बताया, डिवाइड द कंपाउंड शेप इंटू बेसिक शेप. In this case, the C shape has 3 rectangles. Name the 3 rectangles as area 1, area 2, area 3. Then find the area. So area 1 is equal to B into H, 120 into 40. Area 1, area 3 सेम है, तो इसके लिए area 3 हो जाएगा 120 into 40. ठीक है, यहाँ पर area 3 हो जाएगा 120 into 40. This is also 120 into 40. So area 2 हो जाएगा 40 mm into 50 mm. ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड आउट करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस एरिया का, इंडिविजुअल एरिया का. मतलब इंडिविजुअल एरिया का हम सेंट्रोइड किसी एक रेफरेंस लाइन से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर ऑलरेडी रेफरेंस लाइन हमको दिया हुआ है. सो यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन है
दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स और वाई से, एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब सेंट्रोइड का वाई से डिस्टेंस कितना होगा। हालांकि हमको पता है एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, आज इट इज़ एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो एक्स से डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा 40 प्लस मतलब 80 प्लस 50 130 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर से ये डिस्टेंस हमको पता है एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से, मगर वाई बार हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई बार निकालने के लिए क्या करना है देखिए, तो एक्स बार और वाई बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर से आपको दिखाते हैं, हाँ देख लीजिए, यहाँ पर से एरिया 1 का जो एक्स बार होगा, रेफरेंस लाइन यही है एक्स और वाई। सो एक्स से एरिया 1 का जो टोटल सेंट्रोइड होगा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मतलब हाफ पोर्शन में, इसका हाफ पोर्शन में। सो 40/2 दैट मीन वाई बार इज इक्वल टू 40/2 फॉर एरिया 1 एंड एक्स बार इज इक्वल टू 120/2, दिस इज इक्वल टू 60 mm। और एरिया 3 के लिए, सॉरी एरिया 2 के लिए पहले निकाल देते हैं। तो एरिया 2 के लिए कितना होगा, यहाँ पर से होगा सेंट्रोइड, ठीक हाफ पोर्शन में, एरिया 2 का जो हाफ पोर्शन होगा वहाँ पर से आएगा सेंट्रोइड। सो एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर है एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया 40 mm, और टोटल डिस्टेंस से 50 का हाफ हो जाएगा कितना 25। सो 40 प्लस 25 दैट मीन दिस डिस्टेंस इज 65। और यहाँ पर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए टोटल ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 40, यहाँ पर से यहाँ पर का डिस्टेंस है 40। सो 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20। सो 120 से 20 अगर माइनस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा 100। यहाँ पर से यहाँ पर का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 100। सो एरिया 3 के लिए कितना होगा, 1 मिनट। सो एरिया 3 के लिए कितना होगा, यहाँ पर एक्स है, सो अगर यहाँ पर एक्स होता है तो एरिया 3 के लिए यहाँ से यहाँ पर का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल ये हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 20। सो टोटल डिस्टेंस है 130 माइनस 20 दैट विल बी 110, ये हो जाएगा 110। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही रहेगा 120/2 दैट विल बी 60, एरिया 1 के साथ सेम ही आएगा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी नोट्स कर लिया। देखिए फॉर एरिया 1 एक्स इज इक्वल टू 60 mm, फॉर एरिया 1 के लिए वाई इज इक्वल टू 20 mm, लाइक दैट फॉर एरिया 2 100 mm, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया इधर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया 100 mm। ठीक है, सो 100 mm ये हो जाएगा 65 mm वाई बार, लाइक दैट एरिया 3 के लिए 60 mm 110 mm। सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन, ये हमको मिल गया अभी। सो मिलने के बाद हम इसको टोटल एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एरिया हालांकि मैंने आप प्रीवियस मतलब अभी अर्लियर डिस्कशन किया, 4800 प्लस 2000 प्लस 4800 दैट इज इक्वल टू 11,600 mm²। चलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और इंडिविजुअल एरिया का एक्स बार वाई बार और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी लिख दिया, क्योंकि यही चीज़ हमको ज़रूरत आएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ए, मैंने अभी अभी अर्लियर बताया आपको फार्मूला। ठीक है, तो एक्स मिल गया हमको, ए वाई मिल गया। सो सिग्मा एक्स ये होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ए इधर है, तो यहाँ पर हमको मिल गए 66.90 mm। ठीक है, जो एक्स बार आता है 66.90 mm एंड वाई बार इज इक्वल टू 65 mm, सिग्मा ए वाई बाई सिग्मा ए। मतलब इसको हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग पता है कि एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से तो 65 mm में ये कंपलसरी आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाएगा दिस डिस्टेंस विल बी 65 mm। ओके, ये हो जाएगा 65 mm।
सो यहाँ पर हमने निकाल के कंफर्म भी कर लिया कि 65 mm ही होगा ये। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो नेक्स्ट क्लास में हम और भी एक प्रॉब्लम को लाएंगे, डिस्कशन करेंगे जो सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।